हुआ है आइडेंटिटी से। ओके, आइडेंटिटी से आइडेंटिफायर आया है, ठीक है। तो व्हाट इज, इट्स अ नेम, ओके, यूज्ड टू रिजर्व Reserve memory मेमोरी location, store लोकेशन, value of variables. टू स्टोर वैल्यूज, टू स्टोर वैल्यूज, ओके, टू स्टोर क्या, अ नेम यूज टू रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज ऑफ। अब इसमें बहुत तरह के हो सकते हैं। पहला हो सकता है तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है, फर्स्ट इज अ वेरिएबल। सेकेंड विल बी फंक्शन, ओके, फंक्शन। थर्ड हो सकता है क्लास, Hmm. फोर्थ हो सकता है मॉड्यूल, ठीक है, और एनी अदर ऑब्जेक्ट टाइप, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी अदर ऑब्जेक्ट, ओके। So a name used to reserved memory location to store value of a variable, function, class, module और other object. Okay. Like हम जो कोड लिखते हैं, ठीक है, there are variables, right? Like A, B, C. Okay. Like we define कि A is greater than B, जो हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे देखा था ना, ये जब यहाँ पे ये यूज करते हैं, okay, this is a variable, okay, जिसकी वैल्यू है, you can define a name to it, okay. अब हमने जो कल पढ़ा था वो सब यूज होंगे इसमें अभी मतलब। हाँ, अब धीरे धीरे आगे यूज होते जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये बेसिक्स है, ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा। these are just the हम्म। basics कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ठीक है। मैं अभी स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। पहला, फर्स्ट, इट शुड स्टार्ट, ओके, हम्म। आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद अ लेटर, ओके, लेटर ए टू जी, कैपिटल ए टू जी, ओके, स्मॉल ए टू जेड, ओके, और एन अंडरस्कोर, ओ टू अंडर, टू ऐसा। ओके, ए टू टू। ए टू जी, लाइक ए बी सी डी अल्फाबेट्स इन हाँ लाइक। कैपिटल, लोअर केस, ठीक है, या एक अंडरस्कोर, इट कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, ओके, फॉलोड बाय, फॉलोड बाय, फॉलोड बाय जीरो और मोर लेटर्स, ओके, मोर लेटर्स, लाइक zero or more letters does not mean कि ये zero, okay, zero means it doesn't require, it doesn't need to be any value, okay, it doesn't need to have uh, yeah, sorry, I'm so sorry, I need to correct myself, okay. So it can be or an underscore followed by zero or more letters, or it can be like if we have used starting with an underscore, you can again use an underscore, okay, or digits 0 to 9. Like an example, if we are giving making an identifier, so it can start with alpha underscore 01, okay, or this is, I'm starting with a capital letter, right? Then second thing, it could start with a lowercase, and the second alphabet then can be anything, uppercase, lowercase, okay. And the third thing is that we were saying, or by an underscore, so you can start with an underscore also and then give it a name, alpha, okay. Then it could be 01, okay. These are the examples. Like other thing can be underscore, underscore, okay, alpha with underscore। capital H capital A01, okay. Like these are the different ways we स्टार्ट can, होगा अंडरकोड से स्टार्ट करेंगे ऐसा है। but the thing, yeah, but the things is, but the thing is, कुछ it should वेरिएबल हो start नंबर हो कुछ a मतलब। letter, okay, a capital letter or a small letter, okay, हम्म। uppercase, lowercase, or an underscore. This is the mandate. Like it should start either with a capital letters, मतलब कुछ वेरिएबल होगा उसके बाद फिर अंडरस्कोर होगा। like क्या क्या नहीं समझ रहा, बताओ, मतलब कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ? लाइक एग्जांपल ऐसा कुछ वेरिएबल्स होगा उसके बाद अंडरस्कोर। No, no, no. Like सिर्फ। these are the names that you're giving. Okay.
These are the names. Identifier क्या होगा? A name नेम फिर of memory location. Okay. Like you're defining, like we, for example, we used here A, right? A is equal to 5. Okay. In this case, A is equal to 5. A is your identifier, and 5 is the value that we are assigning to it. And this value, when we are using A, okay, A is equal to 5. Okay. This A will occupy some space, like memory will be allocated to it. Okay. Memory will be allocated to this variable. Okay. So you see, it starts with A, right? So similarly, instead of A, if you're defining a variable like calculate, okay, then you're writing calculate like in short we are writing cal is equal to 5. Okay, this is your identifier. You're identifying this value with this identifier. Okay, so if someone asks you what is the value, what is the name of that 5 that you're giving, what is that? So you will say no, that is used for by this cal, मेमोरी right? लोकेशन Yes. So this is what it is. Okay, we are identifying, we are giving a name to reserve memory, okay, to store values. Okay, it could be variable, function, other फंक्शन object, classes, or पास module. Okay, so it's basically a way of reserving the memory, okay, so that we can store the values in it. Okay, like see, you see here also we have for x is equal to, for x in range. X is also what? An identifier. Okay. In range A is your identifier here. Okay. So these are your identifiers. Okay. So like, so the basic thing is it should start with what? Capital letter or a lowercase or an underscore. Then after underscore, you can write anything. Like a second example is if you're starting with an underscore, you want to name a variable alpha, okay, but you're gonna start with underscore 01 alpha. Like this also you can make an identifier. Okay, it could be what? Variable, right? Like I said, variable, class, module, or any other object. Okay, just make. Any doubt here? नहीं नहीं, कुछ भी हो, तुम जैसे भी तुमने पूछा तुम्हारे पास था, तो अभी हो सकता है तुम्हारे, तुम नहीं पूछती, तुम सोचती नहीं हो कि ओके इट्स फाइन, तो तुम्हारे पास ये डाउट रह जाता है, राइट? वो क्या हो सकता है ना? क्लियर यस है? नहीं है, बताओ। क्लियर है ओके, ठीक है। क्लियर है आई एम गोइंग स्लो नाउ क्योंकि अभी थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा, इट्स हाँ फाइन, इसके राइट? एग्जांपल लिखूंगी तो और समझ में आएगा अच्छे से अभी तो हाँ लाइक ऐसे हाँ, नहीं एग्जाम्पल तुम लिखो लिखो, तुम साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, जैसे भी है वैसे भी तुम्हें ये शीट हम्म मिलेगा। और क्योंकि देखो ये 1-to-1 मेंटोर क्लास इसलिए है ना कि तुम्हें जो भी चीज़ें हैं तुम पूछो, यहीं पे पूछो, तुम लिखो, नोट्स लिख लो, मैं बताते जा रहा हूँ, समझते जाओ, है ना? हम्म इसीलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड होता है, सेकंड थिंग इज पाइथन, especially because we are studying Python, so we'll say it doesn't allow special characters. Okay, special characters पाइथन अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स doesn't allow special character. Okay, पाइथन नहीं लिखा है वो नहीं नहीं है, doesn't allow, like नहीं मैं कुछ डजंट अलाउ खाली वर्ड्स यहाँ पे पाइथन नहीं लिख। डजंट अलाउ स्पेशल हाँ, राइट। मैं कैरेक्टर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखूंगा, आई विल बी स्पीकिंग टू यू व्हेन आई एम ओके रेटिंग, बट आई वोंट राइट एवरीथिंग, राइट? पाइथन डजंट अलाउ स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं पता है आपको? स्पेशल कैरेक्टर लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स एक्स होते हैं वाई जेड हमारे, ऐसा नहीं, एट द रेट, ओके, डॉलर, हैश, ऐसा परसेंटेज, okay, forward slash, backslash, okay. So these are a few examples of special characters. Then there's a tilde, tilde, okay, that's a tilde also is there. Okay, then there is a pipe. You will often ओके hear, जब IT में भी तुम जब आओगी ना, तो you will all often hear this word pipe. Like if you are into Linux, आई like if you work like you might have some reference to it. Okay, there will be few places coming. So this is called a pipe. Okay, this is a tilde. It looks like a single quote, but it's very different. If you see on your keyboard, uh,
Okay, if on our phones we cannot see, but on your Windows laptop, okay, you will see. On my Mac, I cannot show you that, but there is. Okay, so like that. Okay, there's a till and there's a semicolon. They will, if you see on a text, okay, it might from a distance you will feel okay they are the same, but that's not a single colon. Okay, that's a Okay. tilde. Okay, so it doesn't allow special characters. So example, if you're writing identifier like a variable name you are giving alpha मतलब यहाँ पे नीड नहीं है इसकी, है ना? at the rate, you cannot use it. This, Yeah. if you're using na at the rate Yes. or dollar, okay, or hash in this variable name, it won't allow. You know, Python will Okay. give an error here that the identifier name is invalid. Okay. Yes. Then the third thing is Python is case sensitive. Okay. Python is what? Case Python is case sensitive. It means what? Case sensitive. Case sensitive means what? एरर आएगा इसमें. Case sensitive हो गया if sorry, if you have two variables with the same name, okay. So what do you think Python is gonna treat them as? Same or different variables? वेरिएबल आएगा तो ये केस सेंसिटिव होगा और एरर आएगा नहीं फिर. नहीं, हाँ नहीं नहीं, देखो जैसे मैंने दो वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक मैंने बनाया अल्फा इज इक्वल टू एक्स, ओके, एंड दूसरा मैं बना रहा हूँ अल्फा इज इक्वल टू एक्स। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि दो द नेम इज सेम, सेम. राइट, नेम इज सेम, बट since the starting, if you see, it starts with a capital A, okay, and the second one starts with a lowercase m a, right? So these two will be treated as different variables. They won't be same, okay? Maybe x is equal to 1, okay? इसमें क्या आएगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा इसका? Like यहाँ पे वही मैं बता रहा था कि अगर मान लो जैसे ये एक मैंने वेरिएबल बनाया अल्फा, नेम इज सेम, राइट, अल्फा, बट इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल ए, राइट, एंड द सेकेंड वन इफ यू सी, देखो अच्छा रुको, मैं समझ गया तुम्हें क्या इशू हो रहा होगा। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है मैं वो बताता हूँ, एक मिनट। केस सेंसिटिव होता है एनीथिंग, ठीक है, केस सेंसिटिव है कि यू आर राइटिंग अ कैरेक्टर नेम, राइट, लाइक आई एम राइटिंग सृष्टि, ठीक है, एस ठीक आर है. आई एस टी एच आई, सृष्टि, ठीक है, ये मैंने फुल कैप्स में लिखा है, अपर केस में, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखूं सृष्टि, तो ये भी सेम चीज लिखा है हमने, राइट, बट ये अपर केस में है, राइट, और ये लोअर केस में, लोअर पूरा नेम, केस में. राइट। अब ओके. जनरली क्या होता है अगर तुम उसमें डालती हो नोट पैड या वर्ड यूज करते हो, ओके, वर्ड और नोट पैड इनको सेम ट्रीट करेगा, एक कैपिटल में है, एक अपर केस में, एक लोअर केस में, राइट, बट पाइथन इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स ट्रीट करेगा, एक अलग अलग आइडेंटिफायर मानेगा कि सृष्टि with all capital uppercase, okay, basically is a different variable. तो अलग अलग कैरेक्टर पे लिखा होगा Yes. उसमें. Okay, and this one with the lower case, जहाँ पे मैंने सब चीजें लोअर केस में लिखे हैं, ठीक है, this will be a different ओके. variable, okay, this will be a variable b and the ओके. upper case will be a variable a, okay. So this is what Python does. Python treats is very case sensitive in terms of this. If you're writing the same thing, but the nomenclature, right? Basically, if it's a combination of तुम्हारा पास्कल केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, ठीक है, कैमल केस होता है, कैमल केस होता है, स्नेक केस होता है एक, ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ओके. आइडेंटिफाई पाइथन इज केस सेंसिटिव मींस इफ यू आर राइटिंग द सेम नेम बट इन डिफरेंट वे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट. वे, upper case, lower case, combinations, right? So those will be या. treated as a different name. Okay, like ओके, same समझ गई. if I show गॉट इट. you, समझ गई। या. एक और एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ, जैसे तुमने यहाँ पे सृष्टि का लिखा, मैंने यहाँ पे सृष्टि एक लिख रहा हूँ, कैपिटल एस, स्मॉल आर, कैपिटल आई,
वो स्मॉल दोनों लिख एस कर आएगा। टी एच आई, ठीक है। मैंने ये लिखा 60, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है, राइट। बट तीनों का देखो स्टाइल अलग है, राइट, है ना। तो ये तीनों को वो अलग अलग वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर ट्रीट करेगा, ठीक है। इट वोंट ट्रीट कि ये तुम्हारा सेम चीज है, बट यही चीज तुम अगर वर्ड ओके। में लिखते हो, इफ यू राइट इन नॉर्मल हम्म। नोट पैड या कहीं पे भी, ठीक है, इट विल ट्रीट एज कि ये हम्म। सेम चीज है। इट्स नॉट अ डिफरेंस, यू ओके। कैन ट्राई इट आउट, राइट। तुम अगर कोई टेक्स्ट लिखो, ठीक है, यू सेंड इट ऑन अ व्हाट्सएप, इवन ऑन अ व्हाट्सएप यू कैन ट्राई कि तुम हम्म। अपना नाम 3 तरीके से लिखना जैसे तुमने लिखा है, ठीक है, एंड देन यू सर्च फॉर इट, ठीक है। वो हो सकता है कि केस सेंसिटिव सर्च ना करे, ओके, इट विल ओके। सर्च फॉर, ओके, दीज आर दी फाउंड फाइंडिंग्स दैट आई फाउंड, कि दिस हियर एंड हियर एवरीवेयर शी इज दैट नेम इज अपीयरिंग, राइट। तो ये केस सेंसिटिव होता है, राइट, समझ गई। या समझ गई, समझ गई। ओके। फोर्थ है कि इन क्लास, क्लास जो बनती है, राइट, क्लास पता है आपको, राइट, हम्म। है ना। तो जो क्लास होता है, एन आइडेंटिफायर विद द सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स, लिखते जाओ, ये लिख लो, ठीक है, ये मैं लिख बता रहा हूँ, फिर तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सो आइडेंटिफायर विद द सिंगल अंडरस्कोर, सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर मतलब स्टार्टिंग में, राइट। आइडेंटिफायर। हाँ, आइडेंटिफायर विद विद with a single leading underscore, sorry, leading सिंगल underscore, लीडिंग। leading ओके। underscore अंडरस्कोर। ओके। indicates हम्म। that the identifier is private, okay, private और public होता है, right, दैट द आइडेंटिफायर इज प्राइवेट। private, okay। So example देता हूँ, if you start with underscore bob, ठीक है, this will be treated as a private, this will be treated as a private identifier, okay। अब फिर तुमने लिख दिया अंडरस्कोर टू अंडरस्कोर bob, ठीक है, ये भी प्राइवेट होगा क्योंकि द स्टार्ट इज विद अ सिंगल वन, ठीक है। ओके। अब तुमने लिख दिया bob अंडरस्कोर टू, दिस विल बी ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्राइवेट वन, ओके। इन क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। इन क्लास जो हम कोड लिखेंगे, ठीक है, मल्टीपल होंगे, एक होगा मेन क्लास, एक होगा सब क्लास जो मेन क्लास का डिराइव्ड होगा, राइट। तो अंडरस्कोर, उसमें, फिर उसके बाद कोई हाँ, कैरेक्टर मतलब नेम। anything, it can be anything, एनीथिंग। it can be, okay. But if it is ओके। starting with a leading single leading underscore, then it will be treated as a private identifier, okay। प्राइवेट आइडेंटिफायर। ओके। हाँ, तो ये हो गया बेसिक्स। अब तुम्हारे आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक बार पहले मैं वेरिएबल्स बताता हूँ, फिर अब मैं रिजर्व वर्ड्स बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का लिंक है, ठीक है। कि तुम ओके। आइडेंटिफायर का नेम, लाइक आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर इज अ नेम दैट वी आर गिविंग टू स्टोर वैल्यूज फॉर ए क्या, वेरिएबल्स, फंक्शंस, क्लास, मॉड्यूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, राइट। क्लास अब या। तो उसमें अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे वर्ड्स ही अलाउड होंगे, राइट, तो कुछ रिजर्व वर्ड्स होंगे। मैं एक बार ये वेरिएबल्स बताते हैं, फिर उसके बाद हम इस पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ओके। ताकि ये तुम्हें समझ आए, ओके। वेरिएबल्स, सो वेरिएबल्स क्या होंगे, वेरिएबल क्या होता है। ये कोई भी मतलब अल्फाबेट। कोई भी मतलब क्या, क्या हो सकता है वो अगर वेरिएबल्स, क्या हो सकता है कुछ हमारे। नाम, कुछ वेरिएबल्स कुड भी, हाँ, जैसे ये जो आइडेंटिफायर था उसी को तुम बोल सकते हो ना, क्या, नेम, नेम ओके, बोल सकते हैं। नेम, ठीक है। दैट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कैरेक्टर्स एंड योर अंडरस्कोर, राइट, कैरेक्टर्स या। अंडरस्कोर डिजिट, बट स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, ये चीज ध्यान रखना, वो वेरिएबल्स नहीं हो सकता, ओके, ठीक है। ओके। तो अब वेरिएबल्स में, अब वेरिएबल्स में तुम्हें पता है ना, डिक्लेरेशन टाइप होते हैं, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, फ्लोट्स। राइट, है ना। प्रिंट तो भी होता है। वेरिएबल, हाँ, सॉरी,
प्रिंट भी होता है। हाँ, इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, स्ट्रिंग होता है, राइट। हम्म। अब जो हम ठीक है। वेरिएबल्स बनाते हैं ना, दैट डज नॉट, ठीक है, दैट डज नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विथ अ पर्टिकुलर, ठीक है, डिक्लेयर्ड विथ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, डज नॉट समझ नीड टू गए, बी डिक्लेयर्ड। विथ एनी पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। मैं जो डिक्लेयर्ड बोलूंगा विथ। वो लिखना मेरे स्क्रीन पे, तो ठीक है, वो देखना तुम, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ पहला क्या है कि does a variable does not need to be declared with any particular type, ठीक है। इसका मतलब वो समझ गई तुम क्या था, यस। क्या समझ आया कि उसका जो डिक्लेरेशन टाइप हो गया, क्या इंटीजर है या फ्लोट है, वो क्या है, राइट। फ्लोट एंड ये सब। हम्म। वो जरूरी नहीं है कि हम उसको डिफाइन करें। जरूरी नहीं है। हाँ, ओके। बाई डिफॉल्ट क्या होता है ना, पाइथन ये आइडेंटिफाई कर लेगा। मान लो तुमने लिखा कि वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, 5 है मतलब 5 की वैल्यू क्या, 5 हो गया इज अ नंबर, फाइव। राइट, तो इंटीजर, वो उसको पिक कर लेगा। तुमने लिख लिया कि 5 इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के हम अंदर हमने लिख दिया सृष्टि, ठीक है, या पाइथन। ओके। इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखा जैसे ही कि x इज इक्वल टू पाइथन सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर, तो इट विल ऑटोमेटिकली ट्रीट इट एज ए व्हाट, स्ट्रिंग, ठीक है। यही चीज तुम लिखोगी 10.0, तो ये हो गया डबल, ठीक है,